Good morning, all of you. Good morning, sir. Just a minute. So we have seen up to this point yesterday. We have completed about the effect of temperature on enzyme activity. There are four factors. We looked at substrate concentration and concept of Km, Michaelis-Menten constant, effect of pH, effect of temperature. Today we have to look at the effect of inhibitors on enzyme activity. Now see, whenever enzyme and substrate are available, action of enzyme will take place. That is for sure. But as I told you, if temperature is not optimum, or when pH is not optimum, when substrate concentration is very low, the enzyme may not act. So for enzyme activity, only presence of enzyme and substrate are not enough. We also require optimum conditions for activity of an enzyme. So if we change the conditions to adverse conditions, for example, then enzyme activity may reduce or may completely stop. If you add certain chemicals, then it also leads to stopping of enzyme activity or reduction in the enzyme activity. So what is important here to understand that this factor, fourth factor, that is your inhibitors, are type of chemicals which are और able. Yes, इसके पहले क्या किया था? you were there for yesterday's lecture. नहीं आज आज. कुछ नहीं, यहाँ से शुरुआत की है अभी अभी just. ओके फर्स्ट स्लाइड है ना मतलब. Yes, so we have to look at the effect of inhibitors. यस सर. So we just discussed that if the conditions are not optimum, pH, temperature, ionic strength, etc., then enzyme activity may reduce or stop. So I may write here that these inhibitors are nothing but some chemicals. Remember, stopping or decrease in enzyme activity occurs due to adverse conditions or due to some chemicals. We have seen effect of conditions like pH, temperature, etc. Now let us look at inhibitors, chemical inhibitors. Now see, what is inhibition? Inhibition is nothing but decrease in the enzyme activity. Decrease in rate of enzyme activity or complete cessation, stoppage of enzyme activity. Decrease in rate or complete cessation of enzyme activity can be termed as inhibition of enzyme activity. Now there are two types of inhibitions that can occur in the enzyme activity.
I can identify two types here. First type of inhibition, it is termed as competitive inhibition, competitive, and other is termed as non-competitive inhibition. Competitive and non-competitive inhibition. Now first we'll look at competitive inhibition, how competitive inhibition occurs. What is the mechanism behind? Now this competitive inhibition, listen to me very carefully. I want complete concentration. What happens during competitive inhibition? See, enzyme activity can be inhibited by inducing shape change in the enzyme. Enzyme का आपने shape change कर दिया, active site का shape change कर दिया, तो enzyme की activity affect हो जाएगी. उसको हम कहते हैं competitive inhibition और inhibition in general. एंजाइम का शेप चेंज कर दो, उसके एक्टिव साइट का शेप चेंज कर दो, ये एक वे है. दूसरा वे है उसका शेप चेंज मत करो, लेकिन जो एक्टिव साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लो. सो वन वे ऑफ इनहिबिटिंग एंजाइम एक्टिविटी इज, देखो ये मेरा समझो एंजाइम है, दिस इज माय एंजाइम, लेट अस से this is my substrate. I have something that can bind to the enzyme at active site instead of substrate. So यहाँ पे अगर इस एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट the molecule which is similar in size and shape to the substrate goes and binds here. Let us say something like this. Then I will get inhibition of enzyme activity because substrate won't be able to bind here. This is inhibitor. In green color, what I have seen shown is I, that is inhibitor I, and S is the substrate, E is the enzyme. So if instead of substrate the inhibitor binds to the active site, there won't be enzyme action. This is one way you can induce the enzyme to stop its activity or reduce its activity. The other way is change the shape of the enzyme. I'm taking the same enzyme, something like this, same shape. So let us say this is enzyme and this is your substrate, normal. And there is a compound which does not bind at active site. It won't block the active site. Instead, this compound, some other compound, we call this as inhibitor I, it goes and binds at some other location to the enzyme. So if this is the enzyme, say for example, to this enzyme, this inhibitor is now attached. When this inhibitor attaches to the enzyme, the shape of the enzyme changes. And the shape of the active site also is changed. So I will have active site something in this manner. Say for example, due to binding of inhibitor, it induces conformational change in the enzyme and in its active site. But see, the inhibitor has not bound at the active site. So even if my substrate is present, this substrate cannot bind with its active site. this substrate active site को bind ही नहीं कर सकता क्योंकि active site का shape ही change हो गया. ये inhibitor यहाँ पे bind हुआ है, किसी और जगह पे जाके bind हुआ है, active site से bind नहीं हुआ. So in the first example, we have inhibitor at
substrate binding site, active site, and in the second example we have inhibitor which is bound at some other site on enzyme other than active site. It is not bound at active site. ये जो साइट होता है जहां पे ऐसे इनहिबिटर जाके बाइंड होते हैं, एक्टिव साइट से जो बाइंड नहीं होते लेकिन एंजाइम एक्शन इनहिबिट कर देते हैं, इस साइट को कहा जाता है allosteric site. We'll see that later. Allosteric site and allosteric inhibition. But these inhibitors will go and bind at some other site on the enzyme. दोनों में देखो एंजाइम एक्टिविटी आइदर कम हो जाएगी और कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगी. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सिंपली हाँ बोलो. वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? नॉन कॉम्पिटिटिव वापस एक बार एक्सप्लेन करिए प्लीज. नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, आपका जो इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है, आई फॉर इनहिबिट, कोई केमिकल है. अब कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ, सबस्ट्रेट भी यहाँ बाइंड होना चाहता है, इनहिबिटर भी यहाँ बाइंड होना चाहता है. इनहिबिटर अगर बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, एंजाइम एक्शन कम हो जाएगी या रुक जाएगी. अब जहां पे आपका इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट से बाइंड ही नहीं होता, वो इनहिबिटर कहीं और जाके बाइंड होगा एंजाइम को, और इसके बाइंडिंग से देयर इज कन्फॉर्मेशनल चेंज, मतलब शेप चेंज इन द एंजाइम मॉलिक्यूल. एंजाइम का शेप ही चेंज होगा, एक्टिव साइट का भी शेप चेंज होगा. सो पूरे के पूरे एंजाइम का शेप और एक्टिव साइट का शेप इस तरह से चेंज होता है कि इवन इफ सबस्ट्रेट इज देयर इट कैन नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट. इसको कहा जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट ऑक्यूपाई नहीं किया इनहिबिटर ने. फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है, एक्टिव साइट इज ऑक्यूपाइड बाय द इनहिबिटर, सबस्ट्रेट विल आल्सो ट्राई टू बाइंड हियर, इनहिबिटर आल्सो ट्राइज टू बाइंड हियर. अगर सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम रिएक्शन होगी, अगर इनहिबिटर बाइंड होता है तो एंजाइम रिएक्शन ही नहीं होगी. सर तो फिर वो इनहिबिटर सेकंड वाले में कैसे कंबाइन करेगा जब परफेक्ट शेप ही नहीं है उसका? नहीं है तो एक्टिव साइट से बाइंड ही नहीं करेगा ना, वही तो बात है. इट डज नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट ना, इट बाइंड्स एट सम अदर साइट. ये देखो एक्टिव साइट इस साइड है, मैंने इस एक्टिव साइट चेंज हो गया उसका शेप. ओके ओके समझ गया. This is the active site. And this is also active site with shape changed. And why this shape has changed? Because your inhibitor has bound somewhere else on the enzyme. और ये बाइंडिंग जो है वो एंजाइम का शेप चेंज कर देगा, तो आपका एंजाइम काम ही नहीं करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं होगा एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट का शेप मैच नहीं करता. समझ में आई बात? यस सर समझ गया. अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो मैंने पहला एग्जांपल दिखाया है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है. सो हियर फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज, here the chemical that is inhibitor is similar in configuration or shape to substrate. substrate की तरह इसका शेप होगा इनहिबिटर का, and this inhibitor competes with substrate to bind at active site. मतलब इन दोनों में कंपटीशन होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो मॉलिक्यूल ज्यादा है वो बाइंड होंगे. इट्स प्योर
रैंडम प्रोसेस, सबस्ट्रेट बाइंड होता है या इनहिबिटर बाइंड होता है। सबस्ट्रेट के 1000 मॉलिक्यूल्स है, इनहिबिटर के 10 मॉलिक्यूल्स है, सो देयर आर मोर चांसेस दैट सबस्ट्रेट विल बाइंड एट एक्टिव साइट। अगर इनहिबिटर के 1000 मॉलिक्यूल्स है और सबस्ट्रेट के 100 मॉलिक्यूल्स है, there are more chances that inhibitor will bind at the substrate active site of the enzyme. So it is purely a random process. So यहाँ पे कोई रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको एंजाइम पहले मिला वो बाइंड हो जाएगा, प्योर रैंडम प्रोसेस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी ने, जिसके ऊपर आपके एमटी में क्वेश्चन था। एक सब्सटेंस है which is called as malonate or malonic acid. This malonate is an inhibitor. I for inhibitor. This malonate competes with an enzyme called as succinate dehydrogenase. ये एंजाइम का नाम है। So malonate succinate competes with succinate, competes with succinate or succinic acid for binding to active site of enzyme succinate dehydrogenase. So फर्स्ट एग्जांपल में मैंने जो एंजाइम दिखाया है यहाँ पे, यह है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सबस्ट्रेट है आपका सक्सिनेट, सक्सिनेट इज द सबस्ट्रेट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द एंजाइम। So instead of succinate dehydrogenase, malonic acid will go and bind with this. अब ये एंजाइम काम क्या करता है देखो, ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी पाथवे क्रेब्स साइकिल में ये जो सक्सिनेट होता है, that succinate is converted into a compound called as fumaric acid or fumarate. सक्सिनेट टू फ्यूमरेट कन्वर्जन ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज करवाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, SDH। ये कन्वर्जन जो है वो एंजाइम करवाएगा, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट कन्वर्जन। अब अगर इस एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड होता है, दैट इज मैलोनेट अगर बाइंड होता है, तो ये कन्वर्जन नहीं होता। अब सक्सिनेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखो, इनहिबिटर इज सिमिलर इन कॉन्फ़िगरेशन टू सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, इनहिबिटर है मैलोनेट, तो दोनों का स्ट्रक्चर कंपेरेबल होना चाहिए, दोनों का शेप भी कंपेरेबल होना चाहिए। अगर मैं सक्सिनेट का शेप देखूंगा या स्ट्रक्चर देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से है, COOH CH2 COOH, ये आपका सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट। जस्ट COOH CH2 CH2 COH, दो बार CH2, ये हुआ आपका सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट। अब ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है आपके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का, लेकिन ये एंजाइम इनहिबिट होता है मेलोनिक एसिड से और मेलोनेट से। सो मेलोनेट का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, और वो है ये COOH CH2 COOH। सी सक्सिनेट में फर्क इतना ही है, एक CH2 ग्रुप ज्यादा है सक्सिनेट में बस। So it will inhibit the enzyme activity completely. This example is given in NCERT. ये NCERT में दिया है example. Malonate competitively inhibits the succinate dehydrogenase enzyme and will affect this conversion. So जब ये inhibition होगा तो आपका succinate dehydrogenase काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे मेलोनिक एसिड बाइंड ही नहीं हो पाएगा, और अगर मेलोनिक एसिड बाइंड नहीं होता है तो फ्यूमरिक एसिड भी नहीं बनेगा, देयर वोंट बी फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में दिया है प्रॉपरली।
So malonate is similar to the substrate succinate, and so it inhibits succinate dehydrogenase and will decrease the enzyme activity ultimately. So enzyme activity कम कर देगा. ये एक एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का. सर हाँ बोलो. लेकिन फ्यूमरेट बनेगा ना फिर भी अगर मैलोनेट ने उसको इनहिबिट किया फिर भी. कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कन्वर्जन किसका हो रहा है? सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमरेट में हो रहा है ना. हाँ. सो अगर सक्सिनेट ही नहीं होगा तो फ्यूमरेट कैसे बनेगा? yes. आपके ये रिएक्टेंट्स है ना, दिस इज द सबस्ट्रेट. ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है. If there is no substrate, how a product will be formed? Product will also not be formed. yes सर sir. तो फ्यूमरेट मैलोनेट बनेगा ही, तो क्या फॉर्म होगा? कुछ भी नहीं होगा. एंजाइम काम ही नहीं करेगा. एंजाइम का एक्शन ही नहीं होगा. एंजाइम will just remain bound with the inhibitor. No action of the enzyme will occur there because, as we have seen, enzymes are highly specific to their substrate. So succinate dehydrogenase काम करेगा सिर्फ और सिर्फ succinate के ऊपर ही. बाकी कुछ भी उससे बाइंड हो, it will not change its structure. So ये malonate को convert ही नहीं करेगा. So this activity will be inhibited. Enzyme activity will be inhibited. Enzyme cannot convert or cannot make a product. समझ में आती है बात? यस सर. So we can say that in competitive inhibition, binding of specific chemical, that is inhibitor, closely similar to the substrate, inhibits the enzyme activity. The inhibitor competes with substrate for binding site of enzyme, and hence substrate cannot bind and enzyme activity declines. अब ऐसे जैसे मैंने बताया, आपके मिक्सचर में समझो 1000 मॉलिक्यूल्स एंजाइम के हैं, 50 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर के हैं. तो ये प्योर चांस रिएक्शन है कि सबस्ट्रेट बाइंड होगा या इनहिबिटर बाइंड होगा. इवन दो मोर चांसेस आर ऑफ इनहिबिटर, some substrate can bind. So out of 100 molecules, maybe 80 molecules will be occupied by inhibitor. At least 20 molecules से substrate bind होगा और reaction होगी. So यहाँ पे reaction stop होती है ये हम नहीं कहेंगे. Rate of reaction decreases. Remember this point. The substrate cannot bind. Enzyme action hence decreases. The rate of enzyme reaction will decrease upon competitive inhibition. Clear up to this point? यस सर. Yeah. Now this is one example that I have given here, very important example given in NCERT. Now second example of competitive inhibition is the example of ethanol. यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल में कह सकता हूँ कि मैलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ फ्यूमरेट सक्सिनेट. मैलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट. मैलोनेट एंड सक्सिनेट compete with each other for binding with substrate binding site or active site of enzyme succinate dehydrogenase. Similarly, ethanol, second example है ethanol. It is competitive inhibitor of मिथेनॉल. दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, मिथेनॉल और इथेनॉल का. यू नो द स्ट्रक्चर्स. So ethanol is competitive inhibitor of methanol for alcohol dehydrogenase enzyme. अब यहाँ पे क्या होता है देखो, इसका रिएक्शन हमें नहीं देखना. जस्ट रिमेंबर when this enzyme acts, actually alcohol dehydrogenase abbreviated as ALD, मेरे पास मिथेनॉल होगा. when alcohol dehydrogenase acts here, this methanol is converted into a toxic compound
which can lead to death. You might have read this in newspapers. कहीं ना कहीं ये न्यूज आता है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में बताते हैं कि लोगों ने टॉक्सिक लिकर लिया and many people died. Now that toxic liquor is nothing but methanol. Actually जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें होता है इथेनॉल. अगर उसमें मिथेनॉल का कंटेमिनेशन हो जाए तो इट बिकम्स टॉक्सिक and it can kill a person because methanol is converted into a toxic compound by this enzyme. अब अगर मेरे सामने पेशेंट है कि जिसको मिथेनॉल टॉक्सिसिटी हुई है, what can be done is ethanol can be given to this person. अगर इथेनॉल दिया तो इथेनॉल जाके इस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को बाइंड करेगा, तो मिथेनॉल इससे बाइंड ही नहीं हो पाएगा. अगर मिथेनॉल बाइंड नहीं हुआ तो टॉक्सिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा. जैसे सक्सिनेट नहीं है तो फ्यूमेरेट नहीं बनता, मिथेनॉल नहीं है तो सक्सिनेट आपका टॉक्सिक कंपाउंड भी नहीं बनेगा. सो दिस एंजाइम इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विथ मिथेनॉल बाइंड्स विथ इथेनॉल. मिथेनॉल इज द सबस्ट्रेट. सो अगर ये इथेनॉल बाइंड होता है तो कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा and hence the enzyme action will be inhibited and a person can be saved. So we can avert by this particular application of ethanol administration to a person suffering from methanol toxicity averts the effects of this particular toxicity. Methanol is toxic. It gets converted into toxic compound and will kill a person. So ethanol will prevent this by competitively inhibiting alcohol dehydrogenase enzyme. ये और एक एग्जाम्पल है इनहिबिशन का. तीसरा एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको लास्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का. अब देखो एक कंपाउंड होता है आपके बैक्टीरिया में विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक सब्सटेंस एसेंशियल है जिसको कहा जाता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, abbreviated as PABA. PABA, para amino benzoic acid. This PABA is very essential for growth of bacteria. So ये PABA अलग अलग पाथवेज में बहुत सारे अलग अलग एंजाइम से, न्यूमरस एंजाइम से बाइंड होता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. PABA will bind to enzyme 1, will be converted to substrate 1. It may bind to enzyme 2, may be converted to substrate 2. And all these compounds which are formed, products which are formed, are used for growth of bacteria. And it causes disease in a person. तो अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट करनी है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. तो अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे प्रिवेंट करनी है तो पाबा बाइंड नहीं होना चाहिए उसके एंजाइम से, बहुत सारे एंजाइम से. सो इस पाबा का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स which are called as sulfa drugs. Antibiotics with sulfa drugs. यहाँ पे सल्फर होगा. So when these antibiotics are given to a person which have sulfate group with sulfa drug, then these antibiotics bind with the enzymes. जहाँ पे पावा बाइंड होना चाहिए था वहां पे एंटीबायोटिक जाके बाइंड होगा. पावा बाइंड हुआ तो ग्रोथ होती है, एंटीबायोटिक बाइंड हुआ तो ग्रोथ नहीं होती. सर ये ऐसा प्रायोरिटी बेस्ड रहता है कि मतलब एंटीबायोटिक रहेगा तो उससे ही कंबाइन करेगा? नहीं, मैंने क्या बताया, दिस इज प्योर रैंडम प्रोसेस. आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये. सो आपका Okay. इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा
तो सबस्ट्रेट बाइंड होने के चांसेस कम है। अगर सबस्ट्रेट बढ़ा तो इनहिबिटर जो अटैच होने के चांसेस कम है। सो इन Okay, अदर sir. वर्ड्स वी कैन से दैट अगर आपको एंजाइम एक्शन चाहिए और आपके रिएक्शन में इनहिबिटर है तो यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सो आई कैन इन अदर वर्ड्स से दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन is generally reversible by increasing substrate concentration. If I increase substrate concentration, you can say reverse the inhibition. Inhibition हम reverse कर सकते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, इनहिबिटर बाइंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर इनहिबिशन चाहिए तो इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, सबस्ट्रेट बाइंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. अब देखो ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और एंटीबायोटिक्स विद सल्फा ड्रग्स, इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो कंपेरेबल। सो अगर मैं इनका स्ट्रक्चर देखता हूं, इट इज वेरी कंपेरेबल विद ईच अदर। जस्ट लेट मी एडजस्ट दिस। ये जो सल्फा ड्रग है और पाबा, अगर आप देखो पाबा का स्ट्रक्चर, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सबस्ट्रेट है ये। इट अपीयर्स समथिंग इन दिस मैनर। सो ये एक टिपिकल आपका C6H6 की तरह रिंग है, बेंजीन की तरह रिंग है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप और यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वो आपका पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इस लोकेशन पे अगर होगा तो उसको ऑर्थो कहा जाता है। ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, मेटा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ऑर्थो मेटा पैरा, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या ऑर्थो मेटा पैरा? Yes, sir. सो दिस इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। अगर ये नहीं है तो ये होगा बेंजोइक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया तो ये होगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब सल्फा ड्रग का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, सल्फा ड्रग ऑल्सो हैज अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। सो सल्फा ड्रग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, वेरी कंपेरेबल शेप होना चाहिए तभी ये बाइंड हो सकता है। सेम रिंग है एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक विद सल्फा ड्रग्स। सो इस तरह से रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। यहाँ पे NH2 है, लेकिन यहाँ पे वी हैव SO2 NH2। दिस इज कॉल्ड एज सल्फा ग्रुप। ये एक्चुअली है सल्फानिल अमाइड। इस कंपाउंड का नाम है सल्फानिल अमाइड कंपाउंड। सो दिस सल्फानिल अमाइड is a type of sulfur drug. It will compete with para-aminobenzoic acid and will inhibit the enzyme action by binding with active site. This point is very important. Here, the inhibitor competes with substrate to bind to the active site of the enzyme. To bind at active site. तभी आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। समझ में आए एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के? यस सर। अब देखो, अगर इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए मैं एंजाइम एक्शन का ग्राफ बनाता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल, so what I'm doing is drawing a graph showing the enzyme activity in competitive inhibition. So on x-axis I have substrate concentration, and on y-axis I have velocity of the reaction. अब जब कोई भी
इनहिबिटर नहीं है, in absence of inhibitor, I get a normal enzyme action. मतलब जो हमें टिपिकल कर्व मिला था वो कर्व मिलेगा मुझे विदाउट एनी इनहिबिटर. सो ये है मेरा विमैक्स इस केस में. Vmax, and this is enzyme activity without inhibitor, obviously without competitive inhibitor. ये Vmax है. और अगर मैं Vmax by 2 कैलकुलेट करता हूँ इसका, तो इसका हाफ समवेयर ओवर हियर आएगा, हाफ. So I will calculate its 50%. So ये हो गया मेरा 50%. Vmax by 2. इस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? ये जो सबसे KM. कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आता है Km. So can I say that this is the Km? कुछ इस तरह से लेबल करता हूँ इसको. Michaelis maintain constant or substrate concentration to achieve half of Vmax. This is Km without inhibitor. So मैंने without inhibitor Vmax देखा, Vmax by 2 देखा, और Km देखा without inhibitor. Now suppose I add inhibitor to the enzyme reaction. अगर मैं inhibitor ऐड करता हूँ तो मुझे यही रिएक्शन कुछ इस तरह से मिलती है. मतलब I will have Vmax same. This is the enzyme activity with inhibitor. मुझे ग्राफ इस तरह से मिलता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में. Vmax अफेक्ट नहीं होता क्योंकि एक्टिव साइट कहीं ना कहीं कुछ एंजाइम्स के एक्टिव साइट अवेलेबल होगी सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए. तो Vmax मेरा अल्टर नहीं होता. जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा वहां पे प्रोडक्ट बनेगा और Vmax अफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर मुझे Vmax अचीव करना है तो मुझे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इनहिबिटर बाइंड हो रहा है. Vmax तो सेम रहा, देखो Vmax में कोई भी चेंज नहीं आया. लेकिन अगर मैं इसका Km कैलकुलेट करता हूं तो Km यहाँ पे आ रहा है, देखो इसका. कैन यू सी द डिफरेंस? Vmax सेम है, Vmax by 2 भी सेम है, लेकिन what has happened, there has been dash in Km. क्या हुआ? Km बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा है. So this is my Km with competitive inhibitor. ये Km मिलेगा मुझे competitive inhibition. So I can say that in case of competitive inhibition, the Vmax remains same. First point I can note here. In competitive inhibition of enzyme action, Vmax remains same, unaltered, but there will be increase in Km. Km is increased. In other words, I can say that more substrate is required to attain
Vmax by 2, मुझे ज्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लगेगा. सो अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ाता, मतलब मेरे पास लेट अस से फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, मैं ये इरेज करूंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सपोज मेरे पास 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है शुरू में, मेरे पास थे फिर 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड 500 इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स. अगर मुझे इस पर्टिकुलर एंजाइम रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज I can increase the substrate concentration tremendously. So 5000 enzyme molecules कर दिए मैंने, substrate molecules कर दिए, और 500 inhibitor है, inhibitor molecules. So obviously there are more chances that binding of these two will occur here. यहाँ पे equal chances है, 50-50%. यहाँ पे much higher chances of substrate are there to bind with an enzyme. So if I increase enzyme concentration, we can reverse the competitive inhibition. So remember, competitive inhibition is generally reversible. Is generally reversible by increasing substrate concentration. Then I can reverse this inhibition. That is your competitive inhibition. याद रहेगा? Any doubt? Anybody here? Is it clear? Yes, sir. So आगे बढ़े. किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना इसमें. इसके No ऊपर doubt, क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन था आपके एमटी में. बोलो आयुषी, डू यू हैव एनी डाउट? You raised your No, hand. sir, I was raising hands for understood. Okay, fine. चलो. Let us then go ahead. Another type of inhibition जो मैंने यहाँ पे लिखा है is non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition. मैंने शुरू में ही डायग्राम में दिखाया था non-competitive inhibition में क्या हो रहा है. See the diagram again. Here there is no competition of inhibitor with active site of an enzyme. So inhibitor will bind to an enzyme at site other than active site, and it will induce the conformational change in the active site of the enzyme. So substrate. हाँ बोलो. Sir, I had a doubt in that 1000 enzymes का था ना question. हाँ बोलो. हाँ सर, अगर 1000 एंजाइम है तो 500 सबस्ट्रेट्स एक्टिव साइट को बाइंड होंगे एंड 500 इनहिबिटर्स होंगे. एंड हाँ. इसमें सेकंड वाले में भी 500 इनहिबिटर्स होंगे और 500 ही होंगे ना सबस्ट्रेट्स भी बाइंड. तो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना. ऐसा तो है नहीं कि कंपलसरी ये सब के सब ज्वाइन होने ही है. अब देखो ये प्योर रैंडम प्रोसेस है, प्योर प्रोबेबिलिटी है ये. अगर आपके सामने मैंने एक बैग दे दी जिसमें 500 ग्रीन बॉल्स है और 500 व्हाइट बॉल्स है. व्हाट आर द चांसेस ऑफ टेकिंग आउट ग्रीन बॉल एंड व्हाइट बॉल? दे आर नियरली सेम, 50-50%. व्हेन यू टॉस अ कॉइन, 50% हेड आ सकता है, 50% टेल्स आ सकता है. एम आई राइट? यस सर. क्योंकि दोनों का नंबर, दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों के चांसेस सेम. अगर मेरे सामने एक बॉक्स रखा है जिसमें 5000 व्हाइट बॉल्स है और 500 रेड बॉल्स है, कौन सा बॉल निकालने के चांसेस ज्यादा है, व्हाइट बॉल या रेड बॉल? आई हैव 5000 व्हाइट बॉल्स, 500 रेड बॉल्स. which ball will come out more commonly, more frequently? रेड बॉल. मेरे पास व्हाइट बॉल से 5000, रेड बॉल से वाइट 500. तो कौन सा बॉल ज्यादा आएगा फ्रिक्वेंटली? वाइट बॉल. व्हाइट बॉल ज्यादा आएगा. सेम अकर्स हियर. मेरे पास एंजाइम मॉलिक्यूल है, मेरे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और मेरे पास इनहिबिटर है, लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का नंबर इतना ज्यादा है कि वो इट इज मोर प्रोबेबल दैट इट विल बाइंड विद एन एंजाइम. एंजाइम रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, वहां पे होता क्या है एक्चुअली सॉल्यूशन में? देयर इज रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है.
रैंडम कोलिजन होता है ना मॉलिक्यूल्स में, एक दूसरे से रैंडम कोलिजन होता है, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। Yes, sir. अबाउ, अगर टेम्परेचर इज अबाउ एब्सोल्यूट जीरो, we have reached up to -272 degrees Celsius, -273 एब्सोल्यूट जीरो हमने अभी तक अचीव नहीं किया, we have reached very near to it. लेकिन any temperature above absolute zero, -273 degrees Celsius or 0 Kelvin, molecules are always in a state of vibration. So at room temperature, the molecules are in a state of vibration. They are in a state of random motion, random movement. So enzyme will move in a solution, substrate will move, inhibitors will move, and they will collide with each other. Inhibitor with enzyme, substrate with enzyme, enzyme with enzyme, substrate with substrate, enzyme with substrate, substrate with inhibitor, inhibitor with inhibitor. All different types of permutation and combinations of collision can occur. But if your substrate molecules are much higher than inhibitor molecules, there are more chances that it will collide with an enzyme rather than inhibitor. So if you increase substrate concentration, there are more chances that active site of an enzyme will be occupied by the substrate rather than inhibitor. It is a pure chanced process, random process है ये. So ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि inhibitor has more affinity to enzyme and substrate has less affinity. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये प्योर रैंडम, प्योर चांस्ड प्रोसेस है. क्या होगा? सो अगर मैंने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंड होने का चांस बढ़ेगा. अगर मैंने इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो इनहिबिटर एंजाइम बाइंड होने के चांसेस बढ़ेंगे. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज डन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन. व्हेन देयर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, I take my sulfa drugs as antibiotics at a very, very high concentration than that of PABA in the cells. So PABA का concentration बहुत कम होगा और मेरे एंटीबायोटिक का concentration उससे बहुत ज्यादा होगा, thousands and millions of times more than PABA. So there are more chances that my antibiotic will bind with an enzyme, PABA bind ही नहीं होगा, and growth of bacteria will be inhibited. आता है समझ में? Yes, sir. So this Sir, is purely a random process. बोलो. वो एंटीबायोटिक पे जो mg रहता है वो कंसंट्रेशन रहता है क्या? हाँ. So आपको जो दिया जाता है एंटीबायोटिक 100 mg, 500 mg, वो जो एंटीबायोटिक होता है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है एंटीबायोटिक का 500 mg का टैबलेट या 250 mg का टैबलेट. एंड डॉक्टर विल टेल यू कि ये बीडी लेना है या टीडी लेना है, 2 बार लेना है दिन में या 3 बार लेना है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसे दिया जाता है एंटीबायोटिक. इट विल इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ अल्टीमेटली. सो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन बैक्टीरियल ग्रोथ. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के मैं पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनलाइक योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, it is generally irreversible. Generally irreversible. अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम है, मैं फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ये सबस्ट्रेट है और ये मेरा इनहिबिटर है. सो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू एन एक्टिव साइट, माय इनहिबिटर इज बाइंडिंग टू सम अदर साइट. किसी और साइट को जाके बाइंड हो रहा है ये एंजाइम के. और जैसे ये बाइंड होगा, ये एंजाइम का शेप और सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट, दोनों का शेप ये चेंज कर देगा. समथिंग इन दिस मैनर. सो दिस इज द एक्टिव साइट. And this is also active site. And now you can see the difference in the shape of active site after binding of an inhibitor. इसलिए substrate यहाँ पे bind ही नहीं हो सकता. Reversible क्यों था competitive inhibition? क्योंकि अगर मैं substrate concentration बढ़ाता हूँ तो जाके आपका substrate bind होने के chances बढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पे substrate concentration आप कितना भी बढ़ाओ, कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा ना एंजाइम पे. बात समझ में आ रही है? मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाऊं,
सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ आप, इनहिबिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनहिबिटर को यहाँ जाके बाइंड ही नहीं होना, इनहिबिटर कहीं और जाके बाइंड हो रहा है। सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं होने वाला एक्टिव साइट से जाके। दैट इज व्हाई such type of inhibitions are generally irreversible. समझ में आई बात? Yes, sir. So ये actions, ये inhibition जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव is generally irreversible. And why it is irreversible? जो मैंने डायग्राम में दिखाया वही रीजन है. There is no competition of enzyme and inhibitor for binding to active site. अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको इसके बाद. और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जब मेरा इनहिबिटर बाइंड होता है, बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर induces conformational change, that is shape change. Conformational change. सर ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए क्या सेकंड पॉइंट में? क्या सर सेकंड पॉइंट में आपने लिखा है नो कंपटीशन ऑफ एंजाइम एंड इनहिबिटर. No competition of substrate and inhibitor. Yes, you are right. Correct. No competition of substrate and inhibitor for binding to active site. So यहाँ पे competition है ही नहीं. Inhibitor कहीं और जाके bind होगा, substrate से उसको कुछ लेना देना नहीं. तो यहाँ पे substrate concentration कितना भी बढ़ाओ, inhibitor का binding effect नहीं होने वाला. Competitive में effect होता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे जाके bind होने, दोनों में competition है. सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो सबस्ट्रेट विन करने के चांसेस बढ़ेंगे. इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो देयर आर मोर चांसेस दैट इनहिबिटर विल विन एट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट. इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको, 3 एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज साइनाइड्स. Cyanide is a very potent poison, instant death. तो cyanide क्या करते हैं? This cyanide bind to metal ions. They bind to metal ions of respiratory enzymes. Respiration के लिए कुछ enzymes हैं जिनको metal ions लगते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए. तो ये साइनाइड जाके इस मेटल आयन से बाइंड होता है. दिस मेटल आयंस आर नॉट अवेलेबल देन टू रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लाइक से फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ये एंजाइम है. इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को मेटल आयन की जरूरत होती है एक्टिविटी के लिए. अगर मेटल आयन नहीं होंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं करेगा. साइनाइड गोज and binds with these metal ions. It is not available to cytochrome oxidase. Respiration stops. Cellular respiration खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा. Remember this. This is one example. Another example of non-competitive inhibitor is heavy metals like say for example mercury, silver, then copper. ये जो heavy metals होते हैं they bind to some particular structures in the enzyme like disulfide bonds, or they bind to thiol groups, and disulfide bonds or thiol groups
they break the thiol group away or break the disulfide bonds in an enzyme. हमने देखा था disulfide bond से tertiary structure maintain होता है enzyme का, याद है आपको? disulfide bridges से enzyme का tertiary structure maintain होता है. Do you remember it? Proteins का tertiary structure is stabilized by disulfide bridges. Yes, sir. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. सो जहां पे ये अमीनो एसिड्स है उनके बीच में सल्फर बॉन्ड्स या सल्फर ब्रिजेस बनते हैं. हमने इन प्रोटीन्स के टर्शियरी स्ट्रक्चर में लिखा था. अगर याद नहीं है तो रिवाइज करने की फिर जरूरत है आपको. और इन डाइसल्फाइड ब्रिजेस से टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन होता है प्रोटीन का. अगर हेवी मेटल बाइंड होता है तो ये जाके सल्फाइड ब्रिज को ब्रेक कर देता है बाय सम केमिकल एक्शन. It breaks down the sulfide bridge. It breaks down the thiol group. SH group जो होता है, SH is thiol group, वो जाके ब्रेक करेगा thiol group को. और इससे एंजाइम की प्रॉपर्टी, एंजाइम का शेप, एक्टिव साइट का शेप सब कुछ चेंज हो जाएगा. एंड ड्यू टू दिस ब्रेकिंग अल्टीमेटली there is change in enzyme shape, that is conformation, no activity. एंजाइम डीनेचर हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली. डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम विल अकर. एंड थर्ड एग्जांपल, आपने ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको ये याद रखा. एटलीस्ट दिस टू यू हैव टू रिमेंबर. देयर इज वन पर्टिकुलर केमिकल व्हिच इज कॉल्ड एज डाई आइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट. Diisopropyl fluorophosphate, abbreviated as DFP. अब आपने इसका नाम, केमिकल नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन you might have heard this. This is called as nerve gas. Nerve gas. अब ये करता क्या है? ये जाके बाइंड होता है DFP binds with an enzyme termed as acetylcholine esterase. इस एंजाइम को एब्रिविएट किया गया है एस. एसिटिलकोलिन कभी सुना हुआ लग रहा है कहीं पे? Neurotransmitter. हाँ, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर. कहाँ पे होता है ये? वेयर इज इट लोकेटेड? Synaptic knob. हाँ, in the synaptic knobs. Synaptic knobs are located at the end of neurons. Axonal end में synaptic knobs होते हैं. तो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था नर्व सेल का. लुक एट द स्ट्रक्चर. अगर आपको ये चीजें याद नहीं आ रही है, those students who are not able to recollect, they need a tremendous revision. इसके एंड में, एक्सॉन के एंड में ऐसे कुछ बल्बस स्ट्रक्चर है जिसको हमने सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा था. और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में सिनेप्टिक नॉब्स कहा था. इन सिनेप्टिक नॉब्स में कुछ वेसिकल्स होते हैं विच आर फिल्ड विथ द न्यूरोट्रांसमीटर. सो अगर मैं एक वेसिकल बड़ा करता हूं, इफ आई मैग्नीफाई अ सिंगल वेसिकल, तो मैं इस तरह से मुझे वेसिकल दिखेगा. और इस वेसिकल में, ये इस सिनेप्टिक नॉब में मुझे अलग अलग वेसिकल्स दिखते हैं, वैक्यूल इस तरह से. और इन वैक्यूल्स में आपका न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, एसिटिलकोलिन. और ये जो एंजाइम है एसिटिलकोलाइन एस्टरेज एंजाइम, इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. इट इज रिक्वायर्ड फॉर transmission of nerve impulse. What do you mean by transmission? Transmission of nerve impulse मतलब क्या? From one nerve to the other nerve. From one neuron to other neuron. Other neuron. हाँ. Nerve is a long wire-like structure of many हाँ. neurons, and they are made up of the cells, neuron.
सो एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, इनके बीच में आपको सिग्नल ट्रांसड्यूस करना है। सो इस तरह से एक एक्सॉन है, ये एक्सोनल एंड्स है विद सिनेप्टिक नॉब्स, और ये डेंड्राइट्स है। Dendrites carry the impulse towards the cell body to the axon hillock, through the axon to the axon terminal and synaptic nodes. So जब impulse यहाँ पे आता है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर अंदर है वो रिलीज हो जाता है यहाँ पे, और इसके आगे दूसरा न्यूरॉन लोकेटेड है, something in this manner. It has its axon and its own axon terminal further. So जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड होता है, दिस इज योर एसिटिलकोलिन एक्चुअली, ACH मतलब एसिटिलकोलाइन। अब ये एसिटिलकोलाइन जब रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, ये जाके बाइंड होता है आपके डेंड्राइट्स के साथ यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में इम्पल्स जाता है, एंड देन दिस इम्पल्स इज अगेन कंडक्टेड इन द सेम डायरेक्शन along a neuron. It is conduction. Across two neurons, it is transmission. So यहाँ पे impulse का transmission हो रहा है। न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन से जब impulse आगे बढ़ता है तो हम इसको कहते हैं conduction. दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है transmission. ये हमने लिखा भी है when we studied tissues. Revise. So ये acetylcholine esterase जो है, this enzyme is necessary for transmission of the impulse across the neuron. If DFP binds with this acetylcholine esterase, then it prevents the transmission of impulse. Prevents impulse transmission. कभी सुना है क्या इस नर्व गैस के बारे में? नो सर। नहीं सुना, मतलब आपका हिस्ट्री, हिटलर था ना, हिटलर मालूम है? हिटलर सुना, एडोल्फ हिटलर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन ऑफ द मोस्ट क्रूएल मैन नोन इन द हिस्ट्री। तो उसने जो लोगों को एक केबिन में, एक बंद रूम में रखा, उस रूम में ही फिल द रूम विद दिस नर्व गैस से भर दिया उस रूम को। सारे लोग तड़प तड़प के मर गए, बिकॉज कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिशन ही नहीं होता। सो सारे के सारे बॉडी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, नॉट इवन मूवमेंट इज पॉसिबल देन इन दैट केस, एंड देन पर्सन डाइज। So that is how this nerve gas works. It is called as DFP or diisopropyl fluorophosphate, highly toxic gas. So these are some examples of non-competitive inhibition. अब ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या है। In competitive inhibition, there was at least some chance, depending on substrate concentration, there was a chance that substrate could bind with an enzyme and enzyme reaction could occur. पहले कौन बाइंड होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंजाइम एक्शन होगी या नहीं होगी कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में भी यही होने वाला है, पहले कौन बाइंड होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंजाइम एक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वंस द इनहिबिटर इज बाउंड टू द एंजाइम, it cannot be removed. तो आपका ये एंजाइम मॉलिक्यूल as good as non-existent है, it is as good as non-existent। मतलब समझो मेरे पास एक एंजाइम रिएक्शन है जिसमें 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है और 500 नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। ड्यू टू रैंडम एक्शन एंड रैंडम मूवमेंट, I got that out of these 1000 enzyme molecules, let us say 600 enzyme molecules bound with 600 substrates. The remaining 400 enzyme molecules were bound with
400 इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर निकलने वाला है नहीं, ये बाइंडिंग तो हो चुका, and this binding is going to be irreversible binding, as good as now in my reaction there are only 600 enzyme molecules. अगर मैं यही रिएक्शन करता हूं 1000 enzymes 1000 substrates, no inhibitor, I will have binding of 1000 enzyme with 1000 substrate molecules. ये है रिएक्शन नंबर 1, ये है रिएक्शन नंबर 2। तो मुझे बताओ क्या आपको इसमें विमैक्स में चेंज मिलेगा? किसी रिएक्शन में ऐसा कहीं होगा कि विमैक्स ज्यादा है, विमैक्स कम है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस, वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था वो नॉर्वे गैस। बोलो बोलो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बाकी स्टूडेंट क्या सो गए क्या? तो बताओ ऐसा कुछ होगा इसमें? रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा क्या कि विमैक्स चेंज हो रहा है किसी एंजाइम रिएक्शन में? कहीं पे विमैक्स ज्यादा है, कहीं पे विमैक्स कम है, ऐसा कुछ मिलने के चांसेस है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा क्या सर? फर्स्ट रिएक्शन में देखो मेरे टोटल एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल है रिएक्शन के लिए वो है 1000 और वो हमेशा 1000 ही रहेंगे। और सेकंड में मेरे अवेलेबल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर 600। अब समझो मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और बढ़ाता हूँ 1000 एंजाइम्स, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1000 आई मेक द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स 50,000। यहाँ पे भी मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ 50,000। दोनों जगह पे 50,000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, एक में इनहिबिटर है, एक में इनहिबिटर नहीं है। जिस रिएक्शन में इनहिबिटर है वहां पे समझो 400 एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाइड बाय इनहिबिटर। दीज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर एज गुड एज नॉट अवेलेबल फॉर एंजाइम, दे आर नॉट प्रेजेंट, एज गुड एज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं हो सकता। मेरे पास सिर्फ 600 मॉलिक्यूल्स होंगे जो सबस्ट्रेट से बाइंड होंगे। तो कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा? 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स वाला रिएक्शन फास्ट होगा या 600 मॉलिक्यूल्स विद एंजाइम वाला रिएक्शन फास्ट होगा? 600. फास्ट एंजाइम रिएक्शन कौन सा होगा? मोर एंजाइम्स बाइंडिंग विथ मोर सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द मोर प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे एक यूनिट टाइम में मेरे 1000 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे एक यूनिट टाइम में लेट अस से 600 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए से फॉर एग्जांपल। तो कौन सा पर सेकंड लेट अस से और यहाँ पे पर सेकंड लेट अस से, First. कौन सा रिएक्शन फास्ट है? फर्स्ट। सो कैन आई से that with non-competitive inhibition Vmax will be affected? Vmax increase होगा या decrease होगा by addition of inhibitor? डिक्रीज Vmax होगा। हाँ, Vmax कम होगा। By addition of non-competitive inhibitor the Vmax will decrease. So this is generally irreversible, and when we have a competitive inhibitor in the reaction we have decrease in Vmax. Now let us try to find out. Just a minute. Let us try to find out how this will affect the enzyme reaction.
अगर मैं काइनेटिक्स देखता हूँ तो ये किस तरह से अफेक्ट करेगा ये देखते हैं। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये आपका y एक्सिस velocity of the reaction and this is x axis substrate concentration. विदाउट इनहिबिटर मेरा एंजाइम एक्शन नॉर्मली होगा एंड आई विल गेट अ पर्टिकुलर Vmax. तो ये हो गया मेरा Vmax विदाउट इनहिबिटर एंड दिस इज द एंजाइम रिएक्शन विदाउट इनहिबिटर. Enzyme reaction without inhibitor. This is Vmax without inhibitor. अब जब मैं इनहिबिटर ऐड करता हूं तो मुझे एंजाइम रिएक्शन मिलता है कुछ इस तरह से. यहाँ पे मेरा Vmax अल्टर हो गया. This is the Vmax here. This is the Vmax with enzyme inhibitor. Vmax with non-competitive inhibitor. अगर मैं इनका Km कैलकुलेट करता हूं तो Km देखना किस तरह से आ रहा है. अब मेरे फर्स्ट रिएक्शन का जो मैंने येलो में दिखाया है उसका Vmax मैंने दिखाया है, उसका हाफ करो समवेयर ओवर हियर. आपके सामने ड्रॉप कर रहा हूं मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे. सो ये हुआ मेरा Km विदाउट इनहिबिटर. समझ में आ रही बात. यस सर. अब विद इनहिबिटर का Vmax देखो. विद इनहिबिटर का Vmax ये है, उसका हाफ मैं कैलकुलेट करता हूँ समवेयर ओवर हियर. ऊपर नीचे सेम है, ये नियरली यहाँ पे मेरा हाफ आएगा. सो आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर. सी क्या हो रहा है यहाँ पे. Km सेम आ रहा है. हाँ, Km remains unaltered. Km with inhibitor. So I can say that for non-competitive inhibition, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे, 3 पॉइंट्स लिखे थे. In competitive inhibition, Vmax remains same and Km is increased. Instead of that, here I can say that, let me erase this. ये earlier slide पे है. इसके लिए मैं लिख सकता हूँ something in this manner. In non-competitive inhibition, Vmax decreases, Km remains same, and this type of inhibition is generally क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है.
जनरली इरिवर्सिबल, हमने फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है, इट इज जनरली इरिवर्सिबल। सो कितना भी आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पे आपका Vmax डिक्रीज होगा। Why there is decrease in Vmax? Because the shape of active site changes and hence it cannot bind with the substrate. There is no binding of this enzyme with altered shape with the substrate. So उतने enzyme molecules as good as non-existent है reaction। तो मुझे ये ग्राफ इस तरह से मिलता है। This is दूसरा ग्राफ जो मैंने बनाया है। This is the enzyme reaction with inhibitor। सो रिमेंबर कि ग्राफ किस तरह से आएगा, क्या इफेक्ट होता है कॉम्पिटिटिव में, नॉन कॉम्पिटिटिव में, और उसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसके हमें डिटेल में नहीं जाना बिल्कुल, लेकिन वो बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट इनहिबिशन है जो आगे कुछ चैप्टर्स में दिया हुआ। व्हेन वी गो अहेड विद सम अदर चैप्टर्स वी विल नीड दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन आल्सो। तीसरा इनहिबिशन उसको कहा जाता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक और फीडबैक इनहिबिशन। मेरा लेक्चर कब तक है? 9:45. ओके, एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स में एक टिपिकल साइट होता है एक्टिव साइट के साथ साथ। मेरा एंजाइम दिखेगा कुछ इस तरह से। समथिंग लाइक दिस। दिस इज द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, और देयर इज एन अनदर मॉलिक्यूल which is an inhibitor. There is an another molecule which is called as inhibitor. अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो इनहिबिटर होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। How this inhibitor is formed? When this enzyme reaction takes place, यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स से EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट बनता है, that product itself behaves as an inhibitor. The product of enzyme reaction itself will behave as an inhibitor. So जब product concentration एक लेवल के आगे बढ़ेगा, then the product molecules bind with an enzyme at some other site other than active site and shut off or decrease the rate of chemical reaction. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह ही होगा ये, लेकिन यहाँ पे देखो इनहिबिटर ऐसा कौन है, आपका प्रोडक्ट ही इनहिबिटर है। प्रोडक्ट इज अ इनहिबिटर, and when product concentration increases beyond certain value, it binds with an enzyme and inhibits the enzyme reaction. तो समझो सेल में कुछ रिएक्शन हो रहा है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जहां पे A to B to C to D to E ऐसा एक लॉन्ग पाथवे काम कर रहा है, F बन रहा है। सो समझो ये पाथवे है आपके किसी सेल में, F इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब सेल F यूज कर रहा है, अब जरूरत नहीं है F की, नो मोर F इज रिक्वायर्ड। सो जो एंजाइम होगा कन्वर्ट करने वाला, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में उसे जाके ये प्रोडक्ट बाइंड होगा, and it will shut off the enzyme so that these further reactions are stopped. So in other words, I can say
that such type of allosteric or feedback inhibition is a type of regulation of metabolism. कोई भी metabolic pathway अगर मुझे shut down करना है तो I can use this allosteric inhibition. ये जो साइट है जहां पे आपका प्रोडक्ट जाके बाइंड हो रहा है एज एन इनहिबिटर, इसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट. और इस तरह से अगर एंजाइम इनहिबिट होता है तो ऐसे एंजाइम को कहा जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम. एलोस्टेरिक एंजाइम. The active site is there, exactly like non-competitive inhibitor. Instead of any random chemical behaving as inhibitor, it is the product of chemical reaction itself which behaves as inhibitor. So chemical reaction won't occur, the pathway will be regulated. समझ में आई बात? So I can say that this allosteric or feedback inhibition occurs in special type of enzymes, जिनको मैं कहता हूं allosteric enzymes. What are allosteric enzymes? Those enzymes which are with allosteric site. And generally, these enzymes are inhibited by binding of the product itself. So I can say inhibitor और मॉड्यूलेटर, जो आपके एंजाइम रिएक्शन को मॉड्यूलेट करेगा, चेंज करेगा रेट को. इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट. ये एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होता है एंड चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. चेंजेस द रेट ऑफ chemical reaction. Now what is this inhibitor? That is important point here. ये inhibitor का nature क्या है? This inhibitor is a product of long chain reaction or metabolic pathways. So metabolic pathway का ही एक प्रोडक्ट होगा जो इनहिबिट करेगा, इसलिए उसको कहा गया फीडबैक इनहिबिशन. मतलब एंड प्रोडक्ट फीडबैक देता है एंजाइम, क्योंकि आप बस करो भाई, नहीं चाहिए अब एंजाइम एक्शन, मैं यूटिलाइज नहीं हो रहा हूँ, बॉडी का यूटिलाइजेशन का कैपेसिटी या यूटिलाइजेशन का नीड, जो भी नीड है बॉडी का अचीव हो चुका है, अब रुक जाओ, अब मत बनाओ, ये बताने का काम प्रोडक्ट करता है, अब एक्शन मत करो. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज फीडबैक इनहिबिशन. आपका प्रोडक्ट ही फीडबैक दे रहा है एंजाइम को कि स्टॉप द रिएक्शन. मींस इट इज टर्म्ड एज फीडबैक इनहिबिशन. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इसका आपको तुरंत समझ में आएगा. एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम. हेक्सोकाइनेज. अब ये एंजाइम कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज करता है? देखो, ग्लूकोज प्लस एटीपी. ग्लूकोज और एटीपी का रिएक्शन होगा और जो फॉर्म होता है उसको कहा जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में ऐड होगा. एटीपी का क्या होगा बताओ? एटीपी का क्या बनेगा? एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में ऐड हो गया. व्हाट विल हैपन टू एटीपी? ADP. एडीपी बन जाएगा. एटीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. सेकंड थर्ड फॉस्फेट के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है, वो ब्रेक हो गया. दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज. ये ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट एंजाइम है.
जब रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में ये एंजाइम इन्वॉल्व है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्जन। सो जब मेरे सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को अब ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है, उसकी एटीपी की नीड सेटिस्फाई हो गई, उसको अब और ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए, देन दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट actually can bind with this enzyme, binds to allosteric site of this hexokinase enzyme. It comes and binds here. Binds to allosteric site of hexokinase, and hexokinase will be switched off. So जब जरूरत नहीं है तो ये पाथवे बंद हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है which is activated by ADP, inhibited by ATP. E. coli में थ्रियोनिन डियामाइनेज है which is inactivated by isoleucine. ये एक लॉन्ग पाथवे है, थ्रियोनिन टू आइसोल्यूसिन कन्वर्जन, एंड बोथ ऑफ देम आर अमाइनो एसिड्स। दैट इज अ थर्ड एग्जांपल। लेकिन एटलीस्ट ये एक एग्जांपल याद रखो एलोस्टेरिक इनहिबिशन का, बाकी दो आपने नहीं याद रखे तो भी चलेगा। एटलीस्ट रिमेंबर दिस वन एग्जांपल। द प्रोडक्ट इटसेल्फ बिहेव्स एज एन इनहिबिटर एंड बाइंड्स विद अ साइट अदर देन एक्टिव साइट कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। जब इनहिबिटर आके यहाँ पे बाइंड होगा तो अगेन आपके एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा एंड the substrate cannot bind, product cannot be formed. This is called as allosteric or feedback inhibition. Very important. This is rather biochemically or biologically, this is more important. Feedback inhibition. Clear? Yes, sir. अब देखो, what you have to do now is, ये हो गया हमारा इनहिबिशन, हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी हो गया। नाउ लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। सर, हाँ बोलो। सर लेकिन उसको फीडबैक क्यों कहते हैं फिर, फीडबैक इनहिबिशन? फीडबैक क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही फीडबैक दे रहा है जाके एंजाइम को कि बस करो। अगर ये प्रोडक्ट कम है, मतलब ये प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहा है सेल में, तो इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं और वो एंजाइम को कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन जब प्रोडक्ट एक थ्रेशोल्ड से, एक लिमिट कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है तो ये जाके एंजाइम से बाइंड होता है और फिर एंजाइम को बताता है, इन अदर वर्ड्स इट स्विचेस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम का ही प्रोडक्ट एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहा है, hence it is called as feedback. Enzyme forms the product inhibits the enzyme, hence it is called as feedback. ये लूप की तरह काम करता है। ऐसा है जैसे कि प्रोडक्ट फीडबैक दे रहा है एंजाइम को, काम करना है या नहीं करना है। अगर प्रोडक्ट बाइंड नहीं होता तो फीडबैक है काम करो, अगर प्रोडक्ट आके बाइंड होता है तो फीडबैक है काम मत करो, बंद करो एंजाइम एक्शन, जरूरत नहीं है। hence it is called as feedback inhibition because inhibitor is a product itself. Yes, sir. Okay. Now last part from this chapter is to look at classification and nomenclature of enzymes. Enzymes classify किस तरह से किए गए। अब देखो ये जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, it is based on some set of rules. जैसे हम हमारे बोटेनिकल zoological nomenclature के कुछ रूल्स हैं, उसी तरह से एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, सो हम रूल्स नहीं देखेंगे। एक बार एचएससी टेक्स्ट बुक देख लो, वहां पे कुछ रूल्स दिए हैं 11th एचएससी में, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 11th एचएससी में, लेकिन एनसीईआरटी में नीट में नहीं दिए। लेकिन ये रूल्स बनाता कौन?
जैसे बोटेनिकल नेम्स के रूल्स बनाता है ICBN, zoological nomenclature के रूल्स बनाता है ICZN, उसी तरह से nomenclature or naming of the enzyme is according to the classification that is done by Enzyme Commission. Let me write it here. Nomenclature of enzymes, that is naming of enzymes, is done according to classification of enzymes, which I have shown here. According to classification of enzymes done by Enzyme Commission, abbreviated as EC. By this Enzyme Commission काम करता है according to IUPAC. क्या होता है ये IUPAC? IUPAC क्या होता है? International Union of Pure and Applied Chemistry. हाँ, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ये एक यूनियन है. सो इस यूनियन के कुछ लोग मिलके उन्होंने एक एंजाइम कमीशन बनाया है. मतलब केमिस्ट्स विच आर एक्सपर्ट्स इन बायोकेमिस्ट्री, वो बैठ के बताते हैं कि एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करना है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है. So according to this enzyme commission, what is important here is this enzyme commission, EC. So according to this enzyme commission, there are 6 classes of enzymes that are identified, जो मैंने यहाँ पे लिखे. And this classification is based Sir, Sir, you are not audible. Am I audible? Can you hear me? yes, sir. तो कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज किया है एंजाइम ने, इसके ऊपर ये डिपेंड है
कि कौन सा क्लास में वो एंजाइम रखा जाए. सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स is based on the type of reaction that is catalyzed by an enzyme. एक एंजाइम का सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, उसके ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है. So all enzymes are highly specific to their substrates and they will carry out a particular type of reaction. So हर एक एंजाइम हर एक टाइप का रिएक्शन नहीं करता. So बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रिसाइज रिएक्शन कैरी आउट करता है, कैटेलाइज करता है. तो डिपेंडिंग ऑन विच type of reaction is catalyzed by an enzyme, we classify them into different groups. ये 6 groups identify किए हैं. An enzyme is placed in one or the other group depending on which type of reaction the enzyme catalyzes. कौन सा reaction catalyze किया है, उसके हिसाब से उसको अलग-अलग ग्रुप में रखा जाए. Now let us look at these groups one by one. कि कौन से ग्रुप कौन सा reaction catalyze करता है. ये सब NCERT में दिया है. मैं कुछ भी मेरे मन का मेरे हिसाब से नहीं बता रहा. अब देखो पहला ग्रुप है which is called as oxidoreductases और dehydrogenases. Oxidoreductase और dehydrogenase. ये जो एंजाइम्स है, these enzymes they catalyze oxidation reduction reactions and that too between two substrates. मतलब एक इनिशियली जब एंजाइम रिएक्शन शुरू होगा तो एक सबस्ट्रेट है उसके रिड्यूस्ड फॉर्म में, दूसरा सबस्ट्रेट है उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में. एस रिड्यूस, एस डैश ऑक्सीडाइज्ड. ये रिड्यूस सबस्ट्रेट है, ये ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट है, एस एंड एस डैश. जब एंजाइम रिएक्शन होती है, when this reaction is completed, what happens is जो सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड है, इस सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाला जाएगा, डीहाइड्रोजनेज. इससे हाइड्रोजन निकाला जाएगा and that hydrogen is added to S dash. तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो मेरा सबस्ट्रेट रिड्यूस था वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड. S is the substrate which was reduced here. After reaction it gets oxidized. S dash was oxidized, it gets hydrogen and here S dash is reduced by addition of hydrogen or proton. In other words, I can say that these enzymes transfer hydrogen between two substrates. समझ में आई बात? क्या रिएक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, क्या चल रहा है? सो एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड है, एक सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड है. एंजाइम रिएक्शन के बाद जो सबस्ट्रेट रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया. Such type of enzymes are called as oxidoreductases or dehydrogenases. The second group are transferases. As the name suggests, transferase. ये किसी ना किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा. It catalyzes transfer of a group. यहाँ पे भी ट्रांसफर ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर था हाइड्रोजन का. इसलिए ट्रांसफरेज एंजाइम्स catalyze transfer of a group, but other than hydrogen. Other than hydrogen. अगर ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे तो I will place them in oxidoreductase group. Anything other than hydrogen is transferred between the substrate. Then such enzymes are termed as transferases. See the example here. मेरे पास एक substrate है S which is attached to the group G. G is a group, any group other than hydrogen. कुछ भी हो सकता है ये. अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कुछ भी है, एनी ग्रुप अटैच टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. और मेरे पास दूसरा सबस्ट्रेट है एस डैश. जब ये ट्रांसफरेजेस एक्ट करेंगे तो दिस ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम एस एंड एडेड इनटू एस डैश, सो दैट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आई गेट एस डैश जी एंड एस फ्री. The group is transferred from S to S dash, but this group is other than hydrogen. Remember,
Such enzymes are classified under transferases group. समझ में आया? Yes, sir. Third group है which are termed as hydrolases. Hydrolase. अब ये hydrolase क्या करता है? It catalyzes or speeds up hydrolysis. Hydrolysis means breakdown. ये ब्रेकडाउन करेगा किसका? अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स का. एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हैलाइड कोवेलेंट बॉन्ड, फॉस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड्स. देयर आर सेवरल अदर बॉन्ड्स. इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. Hydrolysis, breakdown with water. Hydro means water, lysis means breakdown. So hydrolases are those enzymes which break down the bonds by addition of water molecule. And they can break down variety of different bonds between biomolecules. So first enzyme में भी कहीं ना कहीं bond break हुआ है. हाइड्रोजन का bond break हुआ, हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ. यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन जो ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो ट्रांसफर हुआ. यहाँ पे वाटर से ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए. ईथर, एस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सीसीसी, हैलाइड, पीएन बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गए. These enzymes are called as hydrolases, which break down variety of bonds by addition of water molecules. So enzymes catalyzing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, and variety of other covalent bonds, they are classified as hydrolases. Any doubt up to this point? No, या तो sir. डाउट समझ में आया क्लियरली क्या हो रहा है? Yes. What about other students? बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है? समझ में आ रही है बात क्या चल रहा है या सो रहे हो? चौथा ग्रुप है जिसको कहा जाता है लाइएज. लाइसिस मींस ब्रेकडाउन. लाइएज ये भी ब्रेकडाउन करेंगे बॉन्ड्स का. कोई ना कोई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा. यहाँ पे देखो मेरा प्रोडक्ट कैसा है. सीसी है, एक सी के साथ एक्स अटैच है, एक सी के साथ वाई अटैच्ड है. अब ये जो लाइएज है, इट ऑल्सो रिमूव्स, it catalyzes removal of a group. Just a minute. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. So ये जो लाइजेस है, they catalyze removal of groups by mechanisms other than hydrolysis. मतलब ये ग्रुप ही रिमूव करेंगे लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं करेंगे. By some other means they will remove the groups. So देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ है. CXCY इस तरह से मेरा कंपाउंड है, इससे X और Y रिमूव हो गया. X and Y are attached to each other. कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया. So after action of this enzyme, there is introduction of a double bond. मैं ये रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके से दिखाता हूँ for ease of understanding. ये थोड़ा easily understand होता है. CX और CY ये मेरा कंपाउंड है. जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट होगा तो ये जो X एंड Y है वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन दे विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ बॉन्ड. और जैसे ये निकल जाएगा, कार्बन का एक एक वैलेंसी खाली हो गया. सो नाउ कार्बन हैज डबल बॉन्ड इन बिटवीन, बट नो वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड. Mechanisms other than hydrolysis and formation of a double bond. For example,
conversion of a carboxylic acid into an aldehyde by removal of carbon dioxide. So carbon dioxide remove किया, CO2, RCO, COOH7 is CO2 remove किया, what remains is RCHO, introduction of a double bond. Such type of enzymes are called as lyases. Lysis means breakdown. ये भी breakdown कर रहे हैं, remove कर रहे हैं groups का, लेकिन not by addition of water molecule. The fifth group, they are called as isomerases. As the name suggests, they will bring about interconversion of different variety of isomers. So जो आपके optical isomers है, geometric isomers है, positional isomers है, इनका interconversion करने का काम ये isomerases करते हैं. And hence they are called as isomerase. They interconvert different isomers into each other. इसलिए उनको isomerase कहा गया. And last type, they are called as ligases. Ligases. अब ligases क्या करते हैं? This is the only group. Remember what I am telling you. एक 3-4 मिनट आओ. Ligases is the only group of enzymes with ability to join two substrate molecules. ये ऐसा एक ही ग्रुप है जो अटैच करता है एंजाइम्स को, लिंकिंग करता. It catalyzes linking of two compounds together. एक ही ग्रुप है ये जो लिंकिंग कर पाएगा ग्रुप्स का. It brings about joining of bonds. Like it may form CO bond, it may form CS bond, CN bond, PO bond. ये formation होने वाला है, breakdown नहीं. See this, X plus Y plus ATP forming XY plus ADP plus inorganic phosphate. This is a type of ligase. Can you give me another example of a ligase? जो अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले. Glucose plus ATP, glycolysis. Exactly. वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया, दो एंजाइम्स, दो ग्रुप्स को जोड़ा गया. दैट इज अ टाइप ऑफ लाइगेज, लाइगेजेस. एक टाइप का लाइगेज बहुत कॉमन होता है. अगर कोई एग्जांपल पूछे तो सबसे कॉमन एग्जांपल ये है, डीएनए लाइगेज. वी विल स्टडी दैट नेक्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी में. डीएनए लाइगेज, इट लिटरली कनेक्ट्स, जॉइंस टू डीएनए मॉलिक्यूल्स टुगेदर. दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ने का काम ये एंजाइम करते हैं. मतलब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा दो डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में. इट इज कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लाइगेजेस. दिस इज द ओनली ग्रुप व्हिच हैज जॉइनिंग एबिलिटी. बाकी सारे ग्रुप्स ब्रेक करने वाले हैं. क्लियर? समझ में आया है सबको? शुड आई रिपीट Yes, एनीथिंग? sir. अब देखो एक छोटा सा पार्ट रह जाता है इस चैप्टर का, एंड वाला. एक 2-4 पैराग्राफ दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, शायद पेज नंबर 159 होगा टेक्स्ट बुक का. कोफैक्टर्स करके एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है. ये बड़ा कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्ट बेस्ड है. सो जो है वो है, वो हमें याद रखना है. ये 5 स्लाइड्स है, 5 स्लाइड्स. सो विल कंप्लीट दिस स्लाइड्स इन टुमारोज लेक्चर एंड विल स्टार्ट विथ digestion and absorption. What I want you to do is read the chapter of digestion and absorption from NCERT before tomorrow's lecture. Lecture से पहले आपने चैप्टर पढ़ना है पूरा. Yes, sir. करोगे? पढ़ोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो. So let us stop here Thank today. you, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you all Thank of you, you. sir. Thank you. Thank you.